راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ پریس ریلیز نہیں ہے قومی احتساب بیورو کی۔ اس پریس ریلیز کا اصل مقصد چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی درخواست ہے۔ یہ پریس ریلیز جو آج جاری کی گئی ہے، میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پریس ریلیز نہیں، یہ چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی درخواست ہے، اور وہ اس لیے کہ اس پریس ریلیز کا جو 80% حصہ ہے، جو نواز شریف ہے، جو عمران خان کا سیاسی ایجنڈا ہے، جو جھوٹے بے بنیاد الزامات اور سیاسی انتقام احتساب کے نام کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، 35 سال سے زائد عرصہ نواز شریف کو سیاست میں ہو گیا۔ ایک دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم منتخب سلیکٹڈ نہیں، اس کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے، جس نے ان کی طرح صرف پیسے نہیں کھائے، ڈاکے نہیں ڈالے عوام کی جیبوں پہ، عوام کا آٹا، روٹی، چینی، دوائی، گیس، بجلی جو انہوں نے چوری کیا عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال کر، اس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اس نے اس ملک میں موٹر ویز بنائی، اس نے اس ملک پہ شاہراہیں بنائی، اس نے اس ملک میں ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے 3 سال میں مثال قائم کی۔ اس کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام تک نہیں لگا سکے، اور اس پہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں کہ ان کو نیب عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ فیصلہ جو ججوں کو ان کی ویڈیوز دکھا کے بلیک میل کر کے دلوایا گیا، وہ فیصلہ جو سرینا کے لفافوں میں ججوں کو بھیج کر سنایا گیا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے نواز شریف کی جائیداد کی ریکوری کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے وہ کیس جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ فائنلٹی اٹین نہیں کر چکا، اس کے اوپر یہ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کی درخواست آئی ہے، جو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ درخواست کا مقصد ہی چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہے۔ نیب کی یہ کلا بازیاں، نیب کی یہ پریس ریلیزیں 450 ارب آٹے کی چوری پہ کیوں نہیں آتی؟ نیب کی آنکھوں پر پٹی اور چیئرمین صاحب اندھے ہو جاتے ہیں جب 800 ارب کی چینی چوری نظر نہیں آتی، جب بنی گالا کا زمان پاک جو کروڑوں روپے خرچ کر کے، جس کے پاس جیب میں دھیلا نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے زمان پاک کی تعمیر کرواتا ہے، وہ بنی گالا میں اپنے محل کو، غیر قانونی محل کو قانونی کراتا ہے۔ کہاں سے آئے تھے پیسے آج تک جواب نہیں ہوا۔ ثاقب نثار صاحب نے اپنی کرسی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو کلین چٹ دی، اور وہ بھی کھلی کھلے گی انشاءاللہ ایک دن۔ چیئرمین نیب کی آنکھوں کے اوپر پٹی بن جاتی ہے جب 400 ارب کی LNG چوری نظر نہیں آتی، ہیلی کاپٹر کیس نظر نہیں آتا، بلین ٹری سونامی نظر نہیں آتا، BRT پشاور کے 122 ارب کے کھڈے نظر نہیں آتے، رنگ روڈ نظر نہیں آتا، اور توشہ خانہ ریفرنس دائر ہوتا ہے نواز شریف پہ۔ کل عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں کچھ ڈکلیئر نہیں کروں گا جو مجھے تحفے ملے ہیں، کیونکہ وہ تحفے کھا چکے ہیں۔ نیب کی کلا بازیاں اس وقت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایکسٹینشن کی درخواست ہمیں بلیک میل کر کے نہیں دی جا سکتی، اور اس وقت آج ملک کے اندر نیب چیئرمین کی آنکھوں کے اوپر پٹی بندی ہوتی ہے، آج ملک کے اندر FIR ہو، آج ملک کے اندر جائیداد کا انتقال ہو، آج ملک کے اندر تبادلے ہوں سرکاری، آج ملک کے اندر وزیروں کی کرسیاں ہوں، آج ملک کے اندر ہسپتال کی پرچی ہو، آج ملک کے اندر بچوں کا داخلہ ہو، سب بکاؤ مال بن چکا ہے۔ وہ
नैब चेयरमैन को नजर नहीं आता। नैब चेयरमैन को नजर वो आता है फैसला, ये गैर कानूनी प्रेस रिलीज है, लेकिन ये प्रेस रिलीज चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरखास्त है। और उसके बाद वो चोरी, वो डाका जो मुल्क में 3 साल से डर रहा है, जिसमें तारीख में मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले ये जो 538 अरब है उसकी दरखास्त पब्लिक की जाए। दूसरा जो ब्रॉड शीट है जिसमें इमरान खान साहब ने नैब को अपना एजेंट बनाया, फ्रंटमैन बनाया और टाउट बनाया, जिसमें हिस्सेदार कागज लहरा लहरा के शहबाज शरीफ के खिलाफ शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। वो सब हिस्सेदार वो वजीर आजम हाउस में बैठे हैं, जिसमें 25 करोड़ रुपया अदायगी की गई, जिसमें 9 अरब की अदायगी की गई, जिसके अंदर 30 करोड़ की फीस की, लीगल फीस की अभी भी मकरूज है 2001 से लेकर आज तक। वो तमाम रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, ब्रॉडशीट का सब रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। और इसी तरह की एहतसाब ब्यूरो पाकिस्तान की प्रेस रिलीज जारी की जाए। प्रेस रिलीज जारी की जाए 850 अरब की चीनी चोरी की, प्रेस रिलीज जारी की जाए 400 अरब के आटे चोरी की, प्रेस रिलीज इशू की जाए बिलियन ट्री सुनामी की, हेलीकॉप्टर केस की, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स की, 600 अरब की LNG की, करोड़ों रुपए की जमान पाक की तामीर की, बनी गाला के गैर कानूनी महल की, तोशा खाना का रेफरेंस दायर किया जाए जिसको डिक्लेयर करने से इनकार किया गया है, 122 अरब के पेशावर मेट्रो की। और उसके बाद ये गुलामी की जाए। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान की आवाम को सस्ता आटा, सस्ती चीनी, रोजगार, सीपैक, बिजली, गैस चोरी करते हैं, उसके बाद वजीर का तबादला करते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद वजीर को फारिग करते हैं, चोरी कराता है इमरान खान और उसके बाद वजीर को इस्तीफा दिलाते हैं। ये तमाशा, कभी EVM का तमाशा, कभी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का तमाशा, क्योंकि असल तमाशा इन चोरियों को रोकने और इन चोरियों को छुपाने के लिए हो रहा है। ये तमाशा इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम इन लोगों की गिरबान होंगे, इन लोगों के हाथ होंगे जहां हथकड़ियां लगेंगी, जिन्होंने आवाम के पास से रोटी छीन ली, दवाई छीन ली, आटा छीन लिया, बिजली गैस के बिलों के पैसे देने के लिए आवाम के पास पैसे नहीं, और कहते हैं ओवर बिलिंग हो गई, एडवांस टैक्स लगा देते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। और फिर किस मुंह से आप ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ये दरखास्त देते हैं कि मेरी एक्सटेंशन की जाए, EVM के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला करते हैं, आइन के ऊपर हमला करते हैं। पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म होता है, धमकी, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी के साथ पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि मकसद धांधली है, मकसद पॉलिटिकल कंसेंसस और इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है। 2017 में इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था। ये सब काले कानून, ये सब आवाम की जेबों के ऊपर डाके, और ये सब नैब न्याजी गठजोड़ की जो मिली भगत है, ये वो करने के लिए इश्यूज रेज किए जाते हैं। और अब ये तमाशा नहीं चलेगा। आपको किसने हक दिया है, नैब को किस कानून के तहत ये हक है कि वो इस तरह के मीडिया ट्रायल्स के लिए प्रेस रिलीजेस इशू करे? कानून में किस जगह के ऊपर लिखा हुआ है कि जो फैसला अभी फाइनलिटी अटेन नहीं करता, जो फैसले जजों की वीडियोस दिखाकर कराए जाते हैं, जो सरीना के लिफाफों में लाए जाते हैं, वो फैसले के ऊपर आप प्रेस रिलीजेस इशू करें? ये किसी कानून में गुंजाइश नहीं है। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए होता है, और मीडिया ट्रायल का भी मकसद फेल, जीरो मकसद है। क्योंकि आज ये मालूम है पाकिस्तान की आवाम को, आपने उनको भेड़ और बकरियां समझा हुआ है आवाम को। आवाम सब जानती है, आवाम सब समझती है कि असल में इलेक्शन चोर, आटा चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, LNG चोर, गैस बिजली चोर,
मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और इमरान साहब के हुक्म के ऊपर ये तमाम एटीएम माफिया, बिजली गैस माफिया, आटा चीनी माफिया चोरी करता है, डाके डालता है। और दिन थोड़े हैं, इंशाल्लाह दिन थोड़े हैं इन लोगों के, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सब जान चुकी है। और एक दफा फिर मैं नैब चेयरमैन को कहना चाहती हूं, अगर किसी किस्म की शर्म बाकी है, क्योंकि जिस किस्म का सियासी इंतकाम नैब के कानून को इस्तेमाल करके इमरान खान की गुलामी कर कर नैब के इदारे को इमरान खान के हुक्म के ऊपर मुतनाज़ा बनाकर, एहतसाब को मुतनाज़ा बनाकर, पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई एहतसाब के आगे पेश हुआ है तो खुद खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट को, उस केस में जहां उसका नाम नहीं था, उसका नाम नवाज शरीफ है, अपनी बेटी मरियम नवाज का हाथ पकड़ के, जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, एहतसाब के सामने पेश हुआ, क्योंकि उसको यकीन था कि एक धेले की करप्शन अगर साबित हुई तो उसने खुद पेश किया आवाम के सामने अपने आप को। और यहां रोज आटा चोरी करते हैं, रोज चीनी चोरी करते हैं, आवाम की जेबों पर डाके डालते हैं। और नैब चेयरमैन और नैब उस वक्त इमरान साहब के हुक्म के ऊपर अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेता है। और आखिर में ये प्रेस रिलीज, ये तमाशे बंद होने चाहिए। कोर्ट्स मौजूद हैं जहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसों से पिछले दरवाजे से नैब भाग जाती है, सबूत पेश नहीं कर सकती। हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग पूरी के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुर्खरू किया। वो केसेस पढ़े, पाकिस्तान की आवाम वो तमाम फैसले जान चुकी है और इन तमाम हरकतों से बाज आए। बहुत शुक्रिया। कोई सवाल? तो क्या अपोजिशन अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी? इस वक्त महंगाई आए रोज हफ्ते में ऊपर जा रही है, इस पे क्या कर रही है अपोजिशन? देखिए, महंगाई हर हफ्ते नहीं, 3 साल से महंगाई हर रोज बढ़ रही है। पाकिस्तान के ऊपर 18,000 अरब का कर्जा हर दिन बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत, तेल, अंडे की कीमत हर रोज की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बढ़ रही है। और उस चीजों से नजर हटाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर इंशाअल्लाह ऑपोजिशन कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इनको घर बेचकर चैन और सुकून लेगी। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका हर दिन पाकिस्तान की आवाम के ऊपर क़यामत बनकर गुजरता है। और अब इसका खात्मा बहुत ज़रूरी, बहुत यकीनी और मैम, आज नैब की कस्टडी में सिंध के अफसर इस्लामाबाद में फौत हो गए, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। माजी में भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि लोग नैब कस्टडी में फौत हुए हैं, क्या कमेंट करेंगे? नैब कस्टडी में उनको बेल्स मिली जो आवाम के आटा चीनी चोर हैं। नैब कस्टडी में मजलूमों की हलाकतें हुई, कोई जवाब नहीं। हरासमेंट होती है हर रोज नैब कस्टडी के अंदर, सजाए मौत की चक्कियों में रखा जाता है। सब लोग जो मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार हुए, आपको याद होगा एक केस बनाया था राना सनाउल्लाह के ऊपर, उसकी हकीकत भी पाकिस्तान की आवाम को समझ आ गई है। कहते हैं नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के लिए ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया को कर रही थी। उन्होंने कहा कि नैब लाहौर की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। दरअसल ये नैब लाहौर की प्रेस रिलीज नहीं बल्कि वज़ीर आज़म हाउस की प्रेस रिलीज है। और यहाँ